हेलो, वेलकम बैक। मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि कल भी कोई क्लास होगी तो कल ही कोई क्लास नहीं होगी, दिस इज लास्ट क्लास। और अभी हम वही अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं और इन द एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस लुक एट द प्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर हमारा था बट बहुत ऊपर से कर रहा था। पेमेंट एक ढंग से टॉपिक की तरह करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ। Balance of payment of a country is a systematic records of the economic transaction between the resident of a country and the rest of the world. जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? तो अकाउंट्स के अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग करते थे, जब बैलेंस शीट को एंड में बैलेंस करते थे क्रेडिट और डेबिट को इक्वल, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिक अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसके अंदर भी डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। By all, economic transaction means transactions of both visible goods and invisible goods, assets and gifts, etc. The balance of payment of a country is a systematic records of the economic transaction between the resident of the country and the rest of the world. Systematic accounting is done on the basis of double entry bookkeeping. By all economic transactions, which we means the transaction of both visible goods and invisible goods, assets, gifts, etc. Components of BOP. Now, if we look at the components of BOP, we have 4 components. First component is exports and imports of goods. If you look at BOP account, you'll see these 4 components separately in the balance of payment account. The first characteristic हुआ export and import of goods. Export and import of goods means movement of goods between the country. It is also known as export of the visible items. और दूसरा हुआ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज रेंडर्ड और रिसीव्ड, एग्जांपल शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो ये हुआ ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम। तो कंपोनेंट ऑफ बीओपी के अंदर 2 कंपोनेंट हुए, विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम्स में मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही कर रहे हैं हम विजिबल गुड्स को, और है। और सेकेंड है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, सर्विस रेंडर्ड एंड रिसीव्ड, एग्जांपल also known as trades of invisible items. Third component है unilateral transfers. Unilateral transfers included होंगी वो चीजें जैसे हमने फर्स्ट उसके अंदर किया था ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जिसके बदले कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकर होती है और फैक्टर पेमेंट के बदले नहीं होती। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में भी ऐसी है कि गिफ्ट रेमिटेंसेस फ्रॉम द फॉरेनर्स, जो भी जिसके बदले हमने कोई कॉस्ट पे नहीं की, वी हैव नॉट incurred any economic activity on the basis of this, so it is unilateral transfer. It is also included in the BOP account. और fourth आ गया capital receipts and payment. It involves borrowing and lending to and fro abroad, investment to and fro abroad, sale and purchase of assets, change in the foreign reserves. So ये हो गए components of BOP. Components of BOP 4 है, export and imports of goods, export and imports of services, unilateral transfers, capital receipts and payments. Export and imports of goods involves movement of goods between the countries, is known as export and imports of visible items. Export and imports of services means export and imports of invisible items. Unilateral transfers वो transfers जिसके बदले कोई भी कॉस्ट हमने पे नहीं की, गिफ्ट, रेमिटेंसेस एंड फॉरेनर्स से जो भी हमको रेमिटेंसेस मिले। Then fourth is the capital receipt and payment. It involves borrowing and lending to and fro abroad, investment to and fro abroad, sale and purchase of assets, changes in the foreign reserves. These are the 4 components of BOP. BOP क्या है? Systematic record of the transaction between the resident of the world. Systematic record is done on the basis of double entry bookkeeping. यहाँ पे item, visible item, transfers, gifts इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। And it is always balanced, just like your balance sheet जब क्रेडिट और डेबिट एंड के अंदर इक्वल आते हैं तो हमारी बैलेंस शीट मैच करती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो बैलेंस। components हुए 4 components, visible, invisible, unilateral transfers, capital receipts and payment। अब आ गया हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ज्यादातर क्वेश्चन आता है ये पेपर के अंदर कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिफरेंस है क्या। तो पहले देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स है, सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट
imports of goods. बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और हमारा कैपिटल रिसीव्स एंड पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स मतलब ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स. तो आगे पॉइंट्स देखते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम ऑफ गुड्स. Balance of payment, on the other hand, is calculated by adding balance in the current account, capital account, or adding the net balance between foreign exchange or outflow of the foreign exchange. Balance of trade portrays a partial picture of foreign exchange. The balance of payment provides a holistic picture. ये सिर्फ partially बताएगा, मतलब इसमें goods का trade हो रहा है तो सिर्फ partial picture बताएगा. This is the entire holistic picture जो balance of payment बता रहा है. Net effect of balance of trade can be positive, negative or zero. बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स की ट्रांजैक्शन है तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. जीरो पॉजिटिव है तो बीओटी सरप्लस हो जाएगा, नेगेटिव है तो बीओटी डेफिसिट, और जीरो है तो बीओटी बैलेंस है. BOT means balance of trade. The net effect of the balance of payment will always be zero. मतलब कि बैलेंस शीट मैच करेगी. Capital and unilateral transfers are not included in balance of trade, although capital and unilateral transfers are included in balance of payment. A balance of payment is a true indicator of economic performance of an economy. कितन कैसे इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है. इज इट गोइंग डेफिसिट, और ज्यादा हमने गुड्स परचेज कर ली, या सर्विसेज ज्यादा कर दी, या इन्वेस्टमेंट हमने ज्यादा कर दी. इट इज all everything is seen through the help of balance of payment. Balance of trade सिर्फ goods की transaction को record करेंगे, या trade of visible items को ही record करेंगे. It will portray a partial picture. यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. पॉजिटिव का मतलब सरप्लस है बीओटी, नेगेटिव का मतलब डेफिसिट है, जीरो का मतलब बैलेंस है. Capital and unilateral transfers are not included in balance of trade. A balance of payment is a true indicator of economic performance of an economy. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट है. अभी हमने 4 कंपोनेंट्स करी है, उसी के अंदर ही हम क्लासिफाई कर देंगे दो अकाउंट्स को, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. उसी के अंदर ट्रांजैक्शन जो है करंट अकाउंट में आ जाएगी और कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी. करंट अकाउंट मींस द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी इज अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द ईयर. तो 3 कंपोनेंट्स तो इसी में आ गए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स तो करंट अकाउंट में आ गए. It relates to all activity which do not alter the value of asset and liabilities of a country. It includes export and imports of goods, export and imports of services and unilateral transfers. Capital account. Capital account के अंदर हमारी वो transaction आई जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट इसके अंदर ओनरशिप राइट इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल KFC और क्या कहते हैं मैकडी वगैरह जो यहाँ पे आगे सेटअप में, इट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है और पोर्टफोलियो. अगर आप एफडीआई कर रहे हैं, एफडीआई करने का मतलब हुआ कि हमारे पास ओनरशिप राइट आएगा. पोर्टफोलियो का मतलब हुआ हमारे पास ओनरशिप राइट नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी की शेयर परचेज कर लिए इन दी ओपन मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर परचेज कर लिए, तो कंपनी का ओनरशिप राइट तो नहीं आया ना. इट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. जस्ट लाइक अगर फॉरेनर्स यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें तो उनको ओनरशिप राइट नहीं मिलेगा. सपोज आपने रिलायंस के 4 शेयर्स परचेज कर लिए. 4 शेयर्स परचेज करने के बाद आपके पास ओनरशिप राइट्स नहीं है इसका, रिलायंस का. कोई भी डिसीजन आपसे पूछ कर नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज यू होल्ड ओवर शेयर. So portfolio investment does not gives us ownership right. On the other hand, foreign direct investment gives us the gives the ownership right. So it can be seen capital account के अंदर transaction between the resident of the country and rest of the world are included. It includes investment in shares and real estate. First, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट दो तरह से होगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स परचेजिंग एसेट्स अब्रॉड. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे. उसके बाद आ गई बोरोइंग्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो ये कैपिटल अकाउंट का फंक्शन है. अब जो हमारा थर्ड अकाउंट है, इट इज द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को प्लस माइनस करके जो भी हमारे डेफिसिट, सरप्लस, जो भी एंड भी बच रहा है उसको हम ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे. अगर अमाउंट ज्यादा बच रहा है तो आरबीआई क्या करता है, दूसरी कंट्रीज की सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है, अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या कहते हैं ज्यादा अच्छा कर लेता है, बूस्ट कर लेता है, स्ट्रेंथन कर लेता है. तो ये कब होगा, जब यहाँ पे सरप्लस होगा.
मतलब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन को अप्लाई करने में ज्यादा आ रहे हैं, सरप्लस आ रहे हैं, तो ऑफिशियल अकाउंट रिजर्व ट्रांजैक्शन आरबीआई करेगा, क्योंकि दूसरी सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा या गोल्ड एंड सिल्वर परचेज कर लेगा या एसडीआई परचेज कर लेगा। अगर नेगेटिव आया तो उसकी जो लिक्विड सिचुएशन है वो जो बेकार हो जाएगी, इट विल गेट वीकेंड एंड ड्यू टू व्हिच इट हैज टू सेल दो सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, या फिर जो भी उसने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के अंदर कर ली। The positive balance leads to increase in the official reserve and vice versa. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब एक चीज देख लेते हैं ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ द बीओपी। ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं which is take place due to economic motives, मतलब प्रॉफिट, अर्निंग, इनकम, इसकी वजह से हम इनकर कर रहे हैं। They have nothing to do with foreign exchange payment, मतलब ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से तो रिलेटेड नहीं है। इसको हम बोलते हैं above the line items. Since such transactions are independent of the country's balance of payment, irrespective of whether BOP favorable है या unfavorable है, autonomous transaction होंगी ही होंगी। Autonomous transaction के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन आई, जो हमारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये ऑटोनॉमस में आ गया। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो इसलिए टेक प्लेस होंगी ताकि हम जो है अपने डेफिसिट को या सरप्लस को बैलेंस कर सकें। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, these items are called below the line transaction. To meet the deficit, government may borrow from abroad or make withdrawal from foreign exchange reserves. या तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन करेगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई, बोरोइंग, लेंडिंग ये सब आ गया था, या फिर वो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन करेगा जहां पे वो बाय एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करेगा। देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन between the rest of the countries. Systematic accounting is done on the basis of double entry bookkeeping. By all, economic transaction means transaction of both visible goods and invisible goods. Components of BOP हो गए 4 components: export and imports of goods, export and imports of services, unilateral transfers, capital receipts and payments. अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या डिफरेंस था कि ट्रेड के अंदर सिर्फ हम विजिबल आइटम्स ले रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम इनविजिबल भी इंक्लूड कर रहे हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ऑन द अदर हैंड बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको पार्शियल पिक्चर ड्रॉ करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होलिस्टिक पिक्चर। नेट इफेक्ट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस, डेफिसिट या फिर बैलेंस हो सकता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी क्या कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, इट वाज ऑलवेज बी जीरो। कैपिटल और यूनिलैटरल ट्रांसफर बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम नहीं रिकॉर्ड करते, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं करते। बैलेंस पेमेंट के 3 अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर व्हिच वाज डन ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने ट्रांजैक्शन करी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिव्स अस परचेजिंग या फिर ओनरशिप राइट्स। हमने यहाँ पे परचेज कर लिया एसेट अब्रॉड जिसकी वजह से हमको ओनरशिप राइट मिला, बट पोर्टफोलियो के अंदर हम इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं बट वी डोंट गेट ओनरशिप राइट्स, जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इन द मार्केट। दूसरी होगी borrowings, then change in the foreign exchange reserves. अब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की बात करते हैं। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वो ट्रांजैक्शन है जो आरबीआई करता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट करे। अगर डेफिसिट क्रिएट करेगा तो आरबीआई को जो सिक्योरिटीज हैं वो सेल करनी पड़ेंगी मार्केट में, और अगर सरप्लस क्रिएट करेगा तो आरबीआई की हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज जो आरबीआई है वो दूसरी कंट्रीज की सिक्योरिटीज या फिर एसडीआर में इन्वेस्ट करते हैं। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स, ऑटोनॉमस आइटम्स इन बीओपी जो सिर्फ इनकम अर्न करने के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अर्न कर रही है, वजह उसका फॉरेन एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको हम अबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स इसलिए की जाती है क्योंकि ऑटोनॉमस आइटम्स में सरप्लस या डेफिसिट आ चुका होता है, तो इसलिए हम ऑटोनॉमस आइटम्स करते हैं ताकि हम अपने बीओपी अकाउंट को बैलेंस कर सकें। अच्छा, मेरा इसमें एक क्वेश्चन था कि व्हाई बीओपी अकाउंट इज ऑलवेज बैलेंस। BOP account is always balanced because ये डबल एंट्री बुक कीपिंग की तरह वर्क करता है, जस्ट लाइक बैलेंस शीट
यहाँ पे हम ऑटोनॉमस आइटम्स की ट्रांजैक्शन जरूर कर रहे हैं, बट उसका इफेक्ट बैलेंस करने के लिए हम अकोमोडेटिंग आइटम्स की ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, विच इन्वॉल्व्स ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लेंडिंग, ये सब कर रहे हैं। और इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को यूज कर रहे हैं, हमने ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज। स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate demand is the total demand for goods and services produced in the economy for consumption, investment, government and tax. D का formula हुआ C plus I plus G plus net exports. Aggregate supply हुआ, aggregate supply is equals to output level. इक्विलिब्रियम लेवल में दो अप्रोचेस है, ADAS, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स। अगर इसके अंदर बैलेंस नहीं होगा तो इन्वेंट्री के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, या तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी इन्वेंट्री तो प्राइस लेवल फॉल हो जाएगा, और इन्वेंट्री कम होगी तो प्राइस लेवल राइज हो जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन के अंदर दो चीजें थी, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन which is not affected by the income level, which exists even if the income level is zero. or induced investment is positively related to income. और इसके अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट और करे, एपीसी और एमपीसी। एपीसी कहता है रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, एमपीसी कहता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। सेविंग फंक्शन, या तो हमारी इनकम कंज्यूम होगी या सेव होगी, अगर हमने कंज्यूम नहीं करी देन वी आर सेविंग इट। सो सेविंग इज इक्वल्स टू y माइनस सी। सेविंग का फंक्शन हो गया वही y माइनस सी डैश माइनस बी वाई, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा S is equals to minus C dash plus 1 minus B और Y। 1 minus B means MPC। MPC equals होता है 1 minus MPC equal होता है MPS के, because MPS का फॉर्मूला था MPC plus MPS is equals to 1 और APC plus APS equals to 1। APS जो है हमको बताता है रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम। MPS और सपोज अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 100 से 500 और सेविंग्स इंक्रीज हो रहा है 100 से लेट्स से 200, तो डिफरेंस कितना हुआ इनकम? तो डिफरेंस हुआ 300, और 100 से 200 हुई हमारी सेविंग्स, तो डिफरेंस हुआ 100। तो एमपीएस के अंदर हम क्या करेंगे, सेविंग्स को डिवाइड कर देंगे, जो भी चेंज इन सेविंग्स है उसको डिवाइड कर देंगे चेंज इन इनकम से। तो हमारी चेंज इन सेविंग्स कितनी थी 100 डिवाइडेड बाय 300, तो ये 1/3 जो आया हमारा एमपीएस आ जाएगा। एमपीएस एक एमपीएस होता है और एक एपीएस होता है। एपीएस होता है रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हमारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे और इनकम पे। अगर इनकम लेवल बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। और दूसरा जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है देन विल इन्वेस्ट लेस। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मैंने आगे जाके एक इक्वेशन भी बताई थी, वो थी आई डैश माइनस बी स्मॉल आई डैश था और is invest which is not related to income minus BI small I which is rate of interest minus BI क्या BI क्यों था, क्योंकि rate of interest जो है नेगेटिवली रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट से। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने अज्यूम किया कि जी और नेट एक्सपोर्ट जीरो है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट जीरो है तो हम एग्रीगेट डिमांड को इक्वल कर देंगे C प्लस आई, और C प्लस आई की जगह हम यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ड्यूज नहीं ले रहे। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आउटपुट लेवल आ गया 1/1 माइनस बी इंटू ए। मल्टीप्लायर हमको क्या बताते हैं, मल्टीप्लायर हमको बताते हैं कि हाउ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विल अफेक्ट द इंक्रीज इन इनकम एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली विल इंक्रीज कंजम्पशन लेवल। मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलेज हैं, k इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, और i इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC इक्वल्स टू 1/MPS। गवर्नमेंट सेक्टर है वो दो तरह से इन्फ्लुएंस करता है हमारे इक्विलिब्रियम को, एक तो हो गया परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर टैक्सेस से, या फिर ट्रांसफर से। इससे हमको एक चीज और कॉन्सेप्ट हमने देखा था डिस्पोजेबल इनकम का, कि हमारे
हमारी जो इनकम होती है जब हम जॉब के लिए जाते हैं, जो हमको इनकम ऑफर्ड होती है, इट इज नॉट डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम जो हमको सब कट के एंड में मिलती है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम. तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई डैश प्लस डी, और आई डैश के अंदर ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट के अंदर हमने गवर्नमेंट परचेजेस लिए, और बाकी वाई के अंदर हमने ट्रांसफर्स और ट्रांसफर्स को प्लस किया और टैक्सेस को माइनस किया. इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया y इज इक्वल्स टू a डैश अपॉन 1 माइनस c, 1 माइनस c. जो c है वो एमपीएस गवर्नमेंट मल्टीप्लाई 3 तरह से अफेक्टेड हो सकता है. एक तो चेंज कर दे, अगर गवर्नमेंट की परचेजेस चेंज हो रही है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस c, 1 माइनस c. और ये हमने डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था कि एडी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने परचेजेस बढ़ा दी, और कितने लेवल से इंक्रीज होगा, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट गवर्नमेंट मल्टीप्लायर था 1 अपॉन 1 माइनस c, 1 माइनस d. देन टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ने कम कर दिए तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो इनकम कम हो जाएगी. इसके अंदर हम सिर्फ कम होने की बात कर रहे हैं. अगर कम हो गई, ऑल्दो क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि टैक्स मल्टीप्लायर बताओ अगर इनकम लेवल बढ़ गई, तो इनकम लेवल बढ़ गई तो उसके अंदर हम इनकम, अगर हमारा टैक्स रेट बढ़ गया, अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो इनकम लेवल कम हो जाएगी, इनकम लेवल कम हो जाएगी तो यहाँ पे हम माइनस मिल जाएंगे आंसर. और अगर उसको इजी तरह से कैलकुलेट करना है तो मैंने बोला था कि ये वाले को 1 माइनस करके आंसर निकालना. हाँ, और अब हमारा आ गया आईएस कर्व. आईएस कर्व कॉम्बिनेशन बताता है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जहाँ पे एडी और एएस दोनों इक्वल होंगे. आईएस कर्व जो होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिवली अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट डिमांड को, व्हिच अफेक्ट्स कंजम्पशन एंड इनकम लेवल. एडी का हमने फॉर्मूला देख लिया था, सी प्लस आई प्लस डी. आई के अंदर हमने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला डाला है, वो है आई डैश माइनस बी स्मॉल आई मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास y इज इक्वल्स टू आ गया a डैश प्लस सी डैश वाई माइनस बी आई. अब हमारा आईएस कर्व है, 3 तरह के फंक्शंस हमने देखे थे इसके अंदर, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज नेगेटिवली रिलेटेड, सेविंग फंक्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम लेवल. अब अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रही है, इट विल लीड टू कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सेविंग, और अगर इन पॉइंट्स की इंटरेस्ट और इनकम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट पे है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के, डाउन साइड पे इनकम है एक्स एक्सिस पर, उसको सिर्फ दोनों को प्लॉट करेंगे, विल गेट आई की डायग्राम. के जो डिटरमिनेंट्स थे वो दो थे, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना इलास्टिक होगा इट विल कॉरेस्पॉन्डिंगली अफेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एमपीएस. अगर एमपीएस जो है वो ज्यादा होगा तो हमारा स्टीपनेस ऑफ द आईएस कर्व भी ज्यादा होगी. एलएम कर्व के अंदर हमने डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी देखा था, मनी मार्केट और सप्लाई मार्केट, सप्लाई ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी. अब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होनी चाहिए. मनी इज डिमांडेड फॉर 3 रीजंस: ट्रांजैक्टरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव. ट्रांजैक्टरी मोटिव इज पॉजिटिवली रिलेटेड, डिस्क्राइब्स द मोटिव व्हिच कंज्यूमर वांट्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस इनकम. अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगी. सो देयरफॉर एमडी के अंदर एल का जो फंक्शन था, वाई जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है, और दूसरा फंक्शन जो है हमारा वो है प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर हम मनी डिमांड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मीट द फाइनेंशियल कंटिजेंसीज, और इट इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम लेवल, नॉट रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. तीसरा जो है स्पेक्युलेटिव मोटिव. स्पेक्युलेटिव मोटिव डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा होगा. अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो इट इज नेगेटिवली रिलेटेड. तो इसलिए हमने एलएम कर्व के अंदर पुट किया L इज इक्वल्स टू KY माइनस HI. मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल होना चाहिए. मनी सप्लाई हम M से तो जरूर डिनोट कर रहे हैं, M जो है मनी सप्लाई है, बट मनी सप्लाई शुड बी एडजस्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल. प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट किया है, इसलिए हमने M अपॉन P किया है इक्वल्स टू KY माइनस HI. अब हमारा इक्वेशन आ गई I की फॉर्म में. जो हमारी इक्वेशन थी I कर्व की वो थी Y की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे Y लिखा है ना, AD इक्वल्स टू Y.
तो अब अगर हम I की वैल्यू y की इक्वेशन में डाल देंगे, विल गेट द आंसर्स फॉर द y। अब LM कर्व का स्लोप देख लेते हैं। LM कर्व का स्लोप कहता है कि हायर द लेवल ऑफ इनकम, डिमांड फॉर मनी विल बी हायर, और सेकंड कंडीशन कहता है LM कर्व इलास्टिसिटी रिस्पॉन्स टू द चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोअर द इलास्टिसिटी, लिक्विड प्रेफरेंसेस जो है वो भी कम हो जाएंगी और स्टीपर हो जाएगा कर्व। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड प्रेफरेंसेस टू द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, LM कर्व विल बी फ्लैटर और लेस स्टीप। I hope this is clear, and if you have any questions, please post it. If you want to read any other book for macroeconomics, you can use Mankiw, or you can use Dornbusch, Fichers, or Oliver Blanket. These are the books which is recommended for macroeconomics. Aggregate supply जो होता है, aggregate supply is the total output, which is total output of the goods and services which produced in the economy. जो भी total output होगा एक economy के अंदर जितने भी goods and services produce होंगे उसको हम aggregate supply बोलेंगे। Aggregate supply is always equals to y. अगर हमारा aggregate supply y के equal है, इसका मतलब हुआ कि income is either consumed or is saved. LM कर्व के अंदर मैंने मनी मार्केट के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। जो डिमांड फॉर मनी होता है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, ट्रांजैक्टिव मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव एंड ट्रांजैक्टरी मोटिव। अगर हमारा ट्रांजैक्टिव मोटिव पे डिपेंडेंट है, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम लेवल। अगर हमारा उस पे प्रिकॉशनरी मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी लेवल होता नहीं है। और तीसरा जो हमारा फैक्टर जो है वो है स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, ट्रांजैक्टरी मोटिव इनकम को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं। You can see this money demand is equals to L bracket Y and R. Y is the income level which is positively related as seen in the transactory motive, and R is the level of rate of interest which can be seen through speculative motive. तो R जो है negatively related होता है। तो money demand हो गया L equals to KY minus HI, क्योंकि HI के अंदर माइनस इसलिए क्योंकि rate of interest negatively related है। और मनी सप्लाई को हम लिख रहे हैं m डिवाइडेड बाय p। m जो है मनी सप्लाई ही है, बट इट शुड बी एडजस्टेड विद द प्राइस लेवल, क्योंकि ये रियल बैलेंस शो करेगा। तो हमने इसके अंदर मनी सप्लाई और मनी डिमांड को इक्वल रखा। हमारे पास इंटरेस्ट की इक्वेशन आ गई। अब इंटरेस्ट की इक्वेशन इफ विल पुट इन द IS कर्व विल गेट द आंसर फॉर द इनकम लेवल। If you have seen the syllabus of semester, you know of IM and LM होता है। IS की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, और LM की फुल फॉर्म होती है लिक्विड मनी। तो LM हो गया लिक्विड एफेयर्स ऑफ मनी मार्केट, IS हो गया इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रिपीट कर देते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हमने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेस्ट ऑफ द कंट्री बिटवीन द रेस्ट ऑफ फीचर्स हैं जो उसके कंपोनेंट्स है वो चार हैं: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, तो गुड मूवमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, सिर्फ ये मर्केंटाइज का जो ट्रेड हो रहा है ना, इसको हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। बाकी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। LM कर्व के अंदर हम मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई किस लेवल पर इक्विलिब्रियम में होगी।
और उसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट और हमारा वो कहते हैं एमपीएस। यही हमारे जो फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एलएम कर्व को। Autonomous consumption or autonomous investment. Autonomous consumption is a consumption which occurs even if the income level is zero. इनकम अगर जीरो है और अगर हम फिर करें फॉर एग्जांपल इफ यू आर अनएम्प्लॉयड and in spite of the fact you are not earning any money but still your demands are there, you are consuming something, you are consuming your basic necessity thing, तो this is autonomous investment है। तो autonomous investment का मतलब कि वो भी इनकम से रिलेटेड नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने अभी बताया था। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो विजिबल आइटम्स की है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सारी चीजें हैं, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। बैलेंस पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है पार्शियल पिक्चर बताता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड होलिस्टिक पिक्चर। नेट इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब डेफिसिट, सरप्लस या बैलेंस एग्जिस्ट कर सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, इट इज ऑलवेज जीरो। कैपिटल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूडेड नहीं होते बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ऑन द अदर हैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सब इंक्लूड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। टैक्स मल्टीप्लायर, ओके। टैक्स मल्टीप्लायर के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट पहले कैसे इन्फ्लुएंस करती है अपने आप को, तीन तरह से इन्फ्लुएंस करती है। या तो वो परचेज कर लेगी गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर वो टैक्सेस के थ्रू इन्फ्लुएंस करेगी, या ट्रांसफर्स के। अगर वो टैक्सेस के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रही है तो टैक्स मल्टीप्लायर के अंदर क्या हुआ कि हमने सपोज टैक्सेस जो है कम हो गए। अगर टैक्सेस कम हो गए तो अगर पहले सपोज इनकम के ऊपर 10% टैक्स लग रहा था, 5% टैक्स लगना शुरू हुआ, तो इनकम जो इन हैंड आएगी वो ज्यादा आएगी। सो सिमिलरली अगर इन हैंड इनकम ज्यादा आएगी तो हमारी इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा, विच लीड्स टू राइज इन द एग्रीगेट डिमांड। देयरफॉर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, टैक्स रेट कम होने की वजह से इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल चेंज हो गया ई टू ई डैश। और जितना ये क्या कहते हैं लेवल इंक्रीज हुआ है, इट विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करें पीछे वाला, और इसको क्या कहते हैं चेंज इन y इज इक्वल्स टू माइनस सी वाई अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी डैश इनटू टी। I hope it is clear. ऑटोनॉमस की कोई एग्जांपल नहीं है। ऑटोनॉमस मतलब ये है कि बेसिकली हम उसके लिए कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कोई इन्वेस्टमेंट इनकर करी, अब उसके ऊपर प्रॉफिट मोटिव नहीं था, बट इट वाज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज टू बी इनकर रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है या इनकम लेवल क्या है। सो दिस इज व्हाट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज। ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में बता चुकी हूँ। ऑटोनॉमस कंजम्पशन यही होती है कंजम्पशन व्हिच अकर्स इवन इफ द इनकम लेवल इज जीरो, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी वही है जो इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक मोटिव को कंसिडर करते हुए नहीं की जाती, जहाँ पे इनकम लेवल जीरो है। टैक्स मल्टीप्लायर का कोई एग्जांपल नहीं है, इसके अंदर ये न्यूमेरिकल ही है, मतलब ये इक्वेशन ही है जो सॉल्व करनी है। इसके अंदर इक्वेशन के अंदर बस यही है कि अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ेगा, अगर हमारे टैक्सेस कम हो रहे हैं। अगर टैक्सेस कम हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लायर है वो यही है जो ये नीचे शो हो रहा है 26 इक्वेशन नंबर जो है, दैट इज व्हाट द मल्टीप्लायर इज। If you have any other question, you can post it. And for those who are asking about ki PPT
का मतलब पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो उसके लिए यू विल गेट इट ऑन द डैशबोर्ड, वेट फॉर 2-3 days, technical team is working for it. और कोई क्वेश्चन है तो आप सपोज कर सकते हो। And I had one more thing to discuss with you all कि कुछ important questions बताने थे which is expected and you should do it. So I hope you are listening. और ये entire syllabus के अंदर से important questions हैं, so please note down. फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्म और हाउस होल्ड के बिटवीन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर्स, ये तीनों के अंदर कर लेना। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। और सेकंड आ गया हमारा क्वेश्चन जो है डिफाइन जीडीपी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। और एक क्वेश्चन और था, इज जीडीपी एन एप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर वेलफेयर। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया नहीं था। जीडीपी इज एन एप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और नॉट। जीडीपी के अंदर हमको क्या पता चलता है, जीडीपी में हमको ये पता चल रहा है फाइनल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो हमको सिर्फ जीडीपी बता रहे हैं बिटवीन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। अब ये एप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर है या नहीं, सिर्फ हमको ये तो बताया है इसने एक ज्योग्राफी के अंदर यूज हो रहा है। इट इज अ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, इट इज नॉट अ क्वालिटेटिव इंडिकेटर, सो इट इज नॉट what unemployment level कितना है। So GDP is an indicator, but it is not an appropriate indicator to measure the welfare in the economy because it is only quantitative indicator and it is not a qualitative indicator. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला, क्वेश्चन बोला जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, और जीडीपी इज जीडीपी एन एप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। थर्ड क्वेश्चन, नेशनल अकाउंटिंग करने इज वेरी मच, तीनों मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड करने इज वेरी मच नेसेसरी एंड ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक क्लासिकल और केंजियन फ्रेमवर्क, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज क्रेडिट क्रिएशन जो हमने कल किया था। देन सिक्स क्वेश्चन इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल, मॉनेटरी पॉलिसी और उसकी टूल्स वही थे सीआर रेशो, कैश रिजर्व रेशो और बाकी सब। देन इट्स आईए कॉलम, एडी और एएस की इक्विलिब्रियम। Then eighth question is consumption function explain करो। Ninth is the component of AD, 3 टायर मॉडल के अंदर explain करना है। 3 टायर मॉडल हुआ C plus I plus D। और अगला क्वेश्चन है explain BOP and BOT, its account, why BOP is always balance। 11th is explain demand and supply of money, demand और supply of money के मतलब क्या characteristics हैं, और उसके बाद money supply के क्या alternate methods हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप। I do hope you'll do all these questions, only then go for your exams, and by that time prepare and practice all the numericals for value added method as well as income method as well as expenditure method, और consumption function के अंदर भी जो हमने numericals किए, please do that.
If you have any other question, you can post it. So I do hope you'll prepare nicely for your exams. And cover all the topics irrespective of the marking schemes which is involved. We have covered the topic, so please do that. Don't be dependent upon the marking scheme, since the syllabus has changed. So marking scheme is cannot be expected. हाँ जी मैम, ठीक है, कर देते हैं। last year question papers are there on online, you can see. But last year question paper although dependent नहीं है CBCI syllabus के लिए. Although if you want basic idea, you can search it on SWL website. You'll get that last year question papers. If you have any other question, you can post it, or otherwise we will gonna end the call. And that's all for today. Good luck for your upcoming exams. Over to it. Hello. Hello. मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ, करते हैं, ओवर करते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके।